कर रही हूँ कि मरियम नवाज ने जो इकोनॉमिक मॉडल आज पेश किया, ये वही इकोनॉमिक मॉडल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो उन्होंने ये पेश किया था। इस मॉडल के रहते हुए पंजाब तो बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम पंजाब की गलियों को पक्का करेंगे, यहाँ पर जो देहात हैं उसको साफ पानी मुयस्सर करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, IIT से रिलेटेड 5 सिटीज बनाएंगे। कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी 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 किसी ने सोचा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है और हमारी क्वालिटी क्या है, हमें क्या दे के भेजा जा रहा है वहां? इसके साथ साथ उन्होंने जो है पुलिस के निजाम। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটা বেরিয়ে আসছে পাকিস্তানের তরফ থেকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এখন যে খবরটা আপনাদের দিতে চলেছি সেটা শুনে আপনারাও কিছুটা অবাক হবেন। কেন বলছি দেখুন। আপনারা জানেন পাকিস্তানের ভেতরে যখন ভোট হয় সেই ভোট ব্যাংকিংটা কিভাবে হয়। ভারতের যে জম্মু কাশ্মীর আছে সেই জম্মু কাশ্মীরকে সামনে রেখেই তাদের ভোট হয়। যখন ভোটে সেখানকার কোনো মন্ত্রী জিতে যায় বা কোনো বড় বড় নেতা তৈরি হয়ে যায়, তারপরে পাকিস্তানের জনসাধারণকে লুটে কোটি কোটি টাকা বাইরে নিয়ে গিয়ে বাইরে তারা সেটেল হয়ে যায়। আর সেই সমস্ত টাকার যে সমস্ত বড় বড় ঋণের বোঝা হয় সেটা টানে কারা? পাকিস্তানের সাধারণ আমজনতা বা আম পাবলিক। এটাই তো হয়ে আসছে বেসিক্যালি কয়েক বছরের পর বছর ধরে, যেটা আপনারাও জানেন। আর মেন যে ভোটটা হয় সেটা ভারতের জম্মু কাশ্মীরকে সামনে রেখে, এটাই একমাত্র ত্রুপের তাস হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে পাঞ্জাব থেকে একজন এমপি, যার নাম হচ্ছে মরিয়ম নওয়াজ, উনি ওখান থেকে জিতেছে। তো ফার্স্ট টাইম পাকিস্তানের ভেতরে একটি মডেলকে, ইকোনমিক মডেলকে তারা শো করেছে, যেটা অনেকটা ভারতের গুজরাটের সাথে মিল খায়। যেমনটা ভারতের গুজরাটে মডেল রাখা হয়েছিল, এক্স্যাক্টলি হুবহু অনেকটা সেই রকম ভাবে তারা মডেলকে রেখেছে ইকোনমিক ভাবে তাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বিশেষ করে পাঞ্জাবকে। তাদের বক্তব্য এটাই যে আমরা এই সমস্ত প্রজেক্টগুলো সামনে রেখেছি যাতে আমাদের দেশের উন্নতি হয়। একরকম বলতে পারেন এটা হুবহু ভারতকে কপি করছে তারা। তবে এটা তো আপনারা অবশ্যই জানেন, এমনকি সেখানকার জনসাধারণও জানেন, যেই সে দেশের মন্ত্রী হোক বা বড় বড় এমপি বা বড় বড় নেতা হোক না কেন, তাদের যে মেন ত্রুপের তাস সেটা হচ্ছে পাকিস্তানের আমজনতা। তাদের মাথার উপর চাবুককে ঘুরিয়ে সেখান থেকে সর্বস্ব কিছু লুটে নিয়ে গিয়ে তারা বাইরে সেটেল হয়ে যাবে, আর তার ঋণের বোঝাটা টানবে পাকিস্তানের আমজনতা। যেটা হোক বন্ধুরা, এখন পুরো বিষয়টির উপর পাকিস্তানের মিডিয়াতে কি চর্চা হচ্ছে আর তারা যে ইকোনমিক মডেল রেখেছে সেটার উপরে বা কি আলোচনা হচ্ছে সেটা একবার আপনারা নিজেরাই শুনে নিন, তাহলে আপনারা সবকিছু বুঝতে পারবেন। হয়তো এতেও পাকিস্তানের কিছুটা লাভ হলেও হতে পারে, না পাকিস্তান কোনো নতুন গল্পে আবারও ফেসে যাচ্ছে। পুরো ভিডিও ক্লিপটি দেখে নিন, তাহলে আপনারা সবকিছু বুঝে যাবেন। এর সাথে সাথে চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। कभी आपने देखा है कि वहां पे स्टूडेंटों के बारे में, उनके मसाइल के बारे में बात करें? कभी देखा है उन्होंने पाकिस्तानी डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए? हम यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जिस तरह हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं, हमारी प्रॉपर्टियों पे जिस तरह ये कब्जे करते हैं, कभी 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 किसी ने सोचा है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ क्या हो रहा है और हमारी क्वालिटी क्या है, हमें क्या दे के भेजा जा रहा है वहां पे? हम डंकियों पे जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, जलील ख्वार होके जाते हैं, फिर कहते हैं जी आप हमारे एम्बेसडर बन गए। चीमा साहब नहीं, ये आप मरियम नवाज की बात नहीं है, सोच की बात है। ये सोच है मरियम नवाज का, कोई किसी स्पीच में उसने कहा हो कि मैं ये करूंगी, मेरी ये पॉलिसी है। इनके वालिद साहब की तकरीर के 2 अल्फाज में दोबारा कर, मरी में उन्होंने कहा था आई लव यू, यू लव मी, ये उन्होंने मरी में कहा था नवाज शरीफ साहब। कसूर के जलसे में आखिरी जलसा था, उन्होंने कहा था आप मेरे नाल हैं, कसूर आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल हूं, ये उनकी बात। आप सब जवान हैं, मेरी भी सोचें जवान हैं। इससे आगे अभी तक कोई उन्होंने पॉलिसी रिलेटेड बात किसी ने नहीं की। जो गाड़ियां हैं वो अपनी खुद बनाते हैं, आप उनकी एसयूवीज देखें, थार देखें, उनकी आप बाइक्स देखें, बुलेट देखें, ये देखें वो क्वालिटी बनाते हैं और उनकी जो कौम है वो भी अपने प्रोडक्ट को पसंद करती है। और जहां तक स्टेट पॉलिसी की बात रही कि आप इंडिया को देखें कि जो इंडिया है वो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनको अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की श्योरिटी दिलाती है। दबंग एंट्री कौन दबंग एंट्री? तो इन्होंने धांधली से मारी है, धांधली से मारी है ना, धांधली की इन्होंने। तो आप ऑपोजिशन में बैठो ना, इमरान खान को सपोर्ट करने वालों। इमरान खान को पहले इमरान को रहा तो करें, रहा तो करें पहले। क्या मतलब इमरान खान होगा तो पीटीआई होगी? मेरी बात सुने, फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, आप सबको पता। आपके इंडियन जो रुपी है, इंडियन करेंसी में दुनिया के 25 से ज्यादा मुल्क जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। और आप अपने करेंसी का हाल देखो, आपको FATF जो है, फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, वो आपको
ग्रे लिस्ट से नहीं निकाल रहा था, इतनी कशमकश के बाद उन्होंने आपको निकाला है। आपकी ज्यादा से ज्यादा जो मुआशी तरक्की है वो आप IMF के सहारे बैठ रहे हो, ऐसे देख रहे होते हो कि हमें कोई लोन मिले ताकि हम उन चीजों को चलाएं। करेंसी को स्टेबल किया हुआ उन्होंने और अपने मुल्क को स्टेप बाय स्टेप वो लेकर आगे चल रहे हैं, ना कि पीछे चल रहे हैं। बात है। और मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा ने भी उनको कॉपी किया है और इंशाल्लाह इसमें नो डाउट कि कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है। अपने मुल्क को बचाने के लिए, आगे तरक्की के राह पर गमजन करने के लिए अगर हम किसी की कॉपी करते हैं तो इससे नो डाउट कि इसमें कोई बुरी बात है। कर्जा लेके डेवलपमेंट करना, फिर उसी कर्जे को चलाना, ये कहाँ की डेवलपमेंट है? जिस तरह के लिए मजीद कर्जे भी लेना, जिस तरह आप देखें, आपका जो ऑरेंज ट्रेन मंसूबा है, अगर ये ना चले तो 8 अरब रुपए का नुकसान करता है, चले तो 5 अरब रुपए का नुकसान करता है। ये कहाँ की मुआशी तरक्की है? अपने आपने मुआशी तरक्की करनी थी, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करो, आप अपनी यूथ को जिस तरफ मुआशी स्टेबलिटी होती है आप उस तरफ। मरियम नवाज जो कि पंजाब प्रोविंस की पहली CM विमेन बनी है, आज उन्होंने जो इकोनॉमिक मॉडल पार्लियामेंट के अंदर पेश किया उससे ये वाजिया हो गया कि मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। मैं ये बात इस वजह से कर रही हूँ कि मरियम नवाज ने जो इकोनॉमिक मॉडल आज पेश किया ये वही इकोनॉमिक मॉडल है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब गुजरात के CM बने तो उन्होंने ये पेश किया था। इस मॉडल के रहते हुए पंजाब तो बहुत तरक्की करने वाला है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम पंजाब की गलियों को पक्का करेंगे, यहाँ पर जो देहात हैं उसको साफ पानी मुयस्सर करेंगे, बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। IIT चीमा साहब ये थोक ना पकौड़े ज्यादा देर नहीं तल सकोगे तुसी। साडे पंजाबी च कहंदे थोक च पकौड़े तलना। 76 साल हो गए ना IMF के सिर पे, 24 प्रोग्राम है, 24th प्रोग्राम है आपका IMF का। 8 अरब डॉलर मांग रहे हैं इस दफा, 8 अरब डॉलर। अच्छा, मैंने 6 अरब, चलो 12 अरब रुपया ले ले, क्या फर्क पड़ता है? पहले डॉलर कम आए हैं या कंटेनरों में आते रहे? ये बताएं कितने पाकिस्तान पहुंचेंगे? मैं नहीं कहता 8 छड़ के 80 अरब रुपया मांग रहे, पाकिस्तान कितने पहुंचेंगे, लोगों पे कितने लगेंगे? मेरे जैसे बंदे की ये ख्वाहिश है जानने की कि जितना पैसा आ रहा है वो जाएगा कहां? वो लंदन आना है, टोरंटो जाना है, दुबई जाना है, हमारी बला से जितने मर्जी ले लें आप, गुर्दे दे लें, लिखें कि गुर्दे वो IMF को लिख के दे देंगे। तूफान आएगा इस महंगाई के साथ, क्योंकि वजह ये है किस्तें आपने देनी चीमा साहब, इनकी 8 अरब डॉलर की किस्तें उन्होंने नहीं देनी, आपने देनी है। आपके खून से किस्तें लिखी जाएंगी, आपके गुर्दे बेचे जाएंगे, ये हो रहा है। और किसी माई का लाल कभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस सारे सिस्टम को चैलेंज करे। दुख वाली बात यह है कि 250 मिलियन लोगों में एक इंसान नहीं है जो इस सिस्टम को चैलेंज करे, इस करप्शन को चैलेंज करे। एक इंसान नहीं। मस्जिदें तो पल भर में बना रहे हो, कपड़े तो फाड़ रहे हो एक दूसरे के, गोलियां तो मार रहे हो ब्लास्फेमी में। इस मुल्क को बचाओ जिसका कहते हो इसका मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको बचाओ। किस तरह, कौन बचाएगा ये बताओ ना मुझे? कोई है मर्द वाहिद जो पैदा हुआ हो अभी तक? चीमा साहब, अगर किसी का नाम आपको पता हो तो चीमा साहब मुझे बताएं जरूर। मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, और जिस तरह आसपास में यहां घूम रहा हूं, दूध की नहरें देख रहा हूं, परेशान हूं, मजीद परेशान, आपके मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए नहीं, आपके मुस्तकबिल के लिए। और मुझे आपका मुस्तकबिल ठीक नजर नहीं आ रहा है चीमा साहब। एक बंदा जो जेल के अंदर है उसने IMF का लेटर लिख दिया है, देखेगा, सोचे।